Hello guys, as in previous video I discussed till inbreeding. Now I will start with topic outbreeding. And what do you mean by term outbreeding? Outbreeding means breeding between unrelated animals, and it may be of same breed and may be मतलब अनरिलेटेड एनिमल्स होने चाहिए. दैट मीन्स या तो वो सेम ब्रीड के हैं लेकिन कॉमन इंसेस्टर नहीं है 4 to 6 जनरेशन में, या फिर हो सकता है ब्रीड ही डिफरेंट हो या हो डिफरेंट स्पेसेस. दैट मीन्स आउटब्रीडिंग is further can be classified in 3 parts. One is that is having no common ancestor between 4 to 6 generation if same breed, maybe different breed, and third one is different species. Outbreeding is breeding between unrelated animals and having, then it is further of 3 types, that is having no common ancestor between 4 to 6 generation, then different breed, maybe different species, and these 3 have different names. One is outcrossing, one is crossbreeding, one is interspecific hybridization. Maybe it will be clear for you. And then this outcrossing is mainly used when there is inbreeding depression. Inbreeding depression, as I discussed in last video, and outcrossing is used to overcome this depression, and it is the best method for animals that are below average in milk production or in any other case. Then come to next, crossbreeding. Crossbreeding is between superior male of one breed are mated with superior female of another breed, मतलब different breed, superior male, superior female. And then these two allows, इसमें जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि जो हमें डिफरेंट क्वालिटी चाहिए, हमें जो डिज़ायर्ड है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं. दैट मीन्स अपनी मर्जी से जो हमें करेक्टर चाहिए उस अकॉर्डिंग हम डिफरेंट ब्रीड्स की ब्रीडिंग करवा सकते हैं. देन इसका अनदर यूज़ क्या है कि इससे जो इनब्रीडिंग सिलेक्शन है, इससे न्यू स्टेबल ब्रीड्स बनती हैं, मतलब नई जो ब्रीड्स हैं वो ऐड होती हैं, एंड और मे बी जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे भी सुपीरियर बने. इसमें हमारे पास पंजाब में एक नई शीप की ब्रीड बनी थी, दैट इज़ हिजारडेल. इट इज़ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब by crossing 2 different breeds. One is Bikaneeri Eves and one is Merino Browns. इन 2 डिफरेंट ब्रीड्स को क्रॉस करके न्यू ब्रीड फॉर्म हुई थी जो इन दोनों से भी सुपीरियर थी. दैट इज़ बाय क्रॉस ब्रीडिंग मेथड. देन कम टू इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के मेल एंड फीमेल को ब्रीड करवाएंगे. इनमें क्या होता है कि जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा दैट इज़ F1 जनरेशन, उसमें दोनों पेरेंट्स के जो डिज़ायरेबल फीचर्स हैं वो कंबाइन होकर हमें शो होंगे, एंड इस में भी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा हो. इसमें हमारे पास एग्जांपल है म्यूल. म्यूल जो है वो डोंकी एंड हॉर्स इन दोनों
फ्यूज़ करवा के न्यू स्पीशीज़ बनी थी, दैट इज़ म्यूल. Then come to this topic is completed here, that is outbreeding methods. In nutshell, there is outbreeding. Outbreeding is further of three types having no common ancestry, different breed, different species. No common ancestor between 4 to 6 generation, that is outcrossing and used for overcome inbreeding depression. Then different breed, in which superior male and superior female of different breeds are crossed with each other to produce a new breed that is superior than older ones. And third one is different species, that is interspecific hybridization, in which new species is formed. An example is mule. Then next our topic is controlled breeding experiments. In this we have two techniques. One is artificial insemination and one is MOET, multiple ovulation embryo transfer technology. Artificial insemination. First is artificial insemination and next is MOET, multiple ovulation embryo transfer technology. In this artificial insemination, that is semen, that is sperm plus fluid collected from male and injected into reproductive tract of female, and this semen जो हम ये सीमेन को यूज़ कर रहे हैं, मे बी वो फ्रोजन हो और मे बी उसको हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है एंड देन उसको फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है. देन उसके बाद फीमेल बॉडी के अंदर उन दोनों की मेटिंग हो जाएगी एंड मेटिंग होने के बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मल मेटिंग में वो सारी ओवरकम हो जाएंगी. लाइक मे बी स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में एंटर ना कर पाए. एंड सेकेंड वन इज़ प्रॉब्लम इज़ कि जो मे बी जो स्पर्म्स की लाइफ है वो जैसे ही वो एंटर कर रहे हैं वो डेड हो रहे हो. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ये जो दो हमारे मेन इश्यूज हैं वो ओवरकम हो सकते हैं. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ मेनली हेल्प अस टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मीटिंग. And then next is MOET. MOET, multiple ovulation embryo transfer technology. For understanding MOET, that is multiple ovulation embryo transfer technology, we have to understand the role of two hormones, that is LH and FSH. LH is luteinizing hormone and FSH is follicle stimulating hormone. As we know, per month one egg is released from human ovary. In cows there is 6 to 8 egg release per month. And for how it egg कैसे बनता है, जैसे जो ओवरी में फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ होती है. जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी एक स्टेज आती है दैट इज़ ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल से एक oocyte रिलीज़ हो जाता है जिसको हम एग बोलते हैं. जो अब ये फॉलिकल्स की ग्रोथ है वो होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, वेयर एज ग्राफियन फॉलिकल से oocyte का रिलीज़ होना ये होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH. सो दैट इज़ दिस urge of releasing egg is known as ovulation. As name suggests, multiple ovulation embryo transfer technology. It means first multiple ovulation, that is number of eggs पर मंथ उनको इंक्रीज़ करना, उसको मल्टीप्लाई करना. तो उसके लिए क्या होगा, जो एक काऊ है उसको क्या करेंगे कि LH इंजेक्शंस वगैरह दिए जाएंगे ताकि जो नंबर ऑफ एग प्रोडक्शन है एंड रिलीज ऑफ oocyte है LH एंड FSH बोथ, so that number of follicles matured increase and release of egg, number of egg also increase. That means egg का नंबर इंक्रीज हो गया इनसे, दैट इज़ मल्टीपल ओवुलेशन. अब ये है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि एग का नंबर इंक्रीज हो गया. अब उसके साथ क्या करना है, इस एग को स्पर्म के साथ फ्यूज़ करवाया. फ्यूज़ करवाने के बाद ये जाइगोट बन गया. अब नॉर्मल जो काऊ है वो जितने एग्स प्रोड्यूस कर सकती है उतने वो स्पर्म मतलब
फ्यूजन होके उतने वो अपनी बॉडी के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ एग्स इंक्रीज़ हो गया तो वो अब नहीं पॉसिबल कि वो इतने एक्स को अपनी, मतलब वो होते हैं हमारे एक्स, हम 32 एक्स 8 to 32 एक्स की स्टेज तक नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इतने अब उस बॉडी के अंदर, फीमेल काऊ के अंदर इतना ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट को फीमेल बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके सुरोगेट मदर यूज़ करता है, मतलब अनदर काऊ जिसमें हम जो जाइगोट बना है उसको या एम्ब्रियो बना है उसको ट्रांसफ़र करते हैं सुरोगेट मदर में। अब जो हमारी ये वाली काऊ है जिसमें ये एग का नंबर इंक्रीज हुआ है, ये रेडी है दोबारा से इस LH एंड FSH के इन्फ्लुएंस के लिए। अब क्या होगा इसमें, मेन जो समझने वाली बात ये है कि इसमें एक तो LH एंड FSH का वो दे रहे हैं उनको ताकि उनका एग नंबर इंक्रीज हो। एग नंबर इंक्रीज होने के बाद जब वो जाइगोट या एम्ब्रियो बन गया तो उसको दूसरी काऊ में, सुरोगेट मदर में या सुरोगेट काऊ में हम इंसर्ट कर देंगे ताकि जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। अब जो सुरोगेट काऊ है वो उन सब का ध्यान रखेगी एंड उसी से हमारे पास न्यू ग्रोथ होगा। लेकिन जो हमारे पास ये काऊ 1 थी, ये काऊ 2 होगी। अब जो हमारी काऊ 2 है वो तो सुरोगेट मदर की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो काऊ 1 है वो अब दोबारा से फ्री है इन सर्च लेने के लिए। दैट मीन्स इससे हमारा जो नंबर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। वही इस हमारी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज़ MOT is one such program for herd improvement. In this method, a cow is administered hormones with FSH-like activity to induce follicular maturation and superovulation instead of one egg, which they normally yield per cycle. They produce 6 to 8 eggs. The animal is either mated with an elite bull or artificially inseminated. The fertilized eggs at 8 to 32 cell stage, fertilized egg को हम बोलते हैं zygote, and जब वो 8 to 32 cell stage में आ जाती है देन उसको बोलते हैं embryo, are recovered non-surgically and transferred to surrogate mothers. The genetic mother is available for another round of super ovulation. वही मैंने आपको बताया कि जो काऊ 1 है वो फ्री हो जाएगी दोबारा से सुपर ओवुलेशन के लिए, एंड जो काऊ 2 है वो surrogate mother का काम करेगी. This technology has been administered for cattle, sheep, rabbits, buffaloes, mares, etc. High milk yielding breeds of female and high quality meat yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in a short time.